Hmm. Hello students, so we are going to do this chain problem, and it is very famous problem in mechanics. And let me read the question for you, then we'll get started. Okay? And I promise you at the end of the video you'll understand and you will be able to do all the problems that is based on this chain. So one okay, I'm going to read the question, and full question is available in the description of the video. Okay. One end of the chain falls through a hole in its support and pulls the remaining links after it in a steady flow. Okay? The links which are initially at rest acquire the velocity of the chain suddenly. ठीक है, जो पूरा रेस्ट पे है, it acquires the velocity of the chain suddenly and without frictional resistance or interference from the support or from adjacent links. So किसी भी टाइप का resistance, friction, obstruction you have to neglect. ठीक है, there is no such thing. Choose the incorrect option, and some of the information is given, so let me just explain. This is the pile of chain which has been put on a support or table or like that, and there is a hole through which every link of the chain starts falling. ठीक है, at time t equal to 0 initially, at time t equal to 0, x equal to 0, that means none of the chain has fallen. कोई भी chain नीचे गिरना शुरू नहीं हुआ. What does it mean? There is no velocity. ठीक है, it is given to you, the initial condition is given to you, no friction as I said, and this chain is falling in a steady flow. Steady flow means no steady, whenever there is steady and uniform, two words are there. So whenever it comes steady, that means with the time there is no variation in parameters. And then other thing is uniform. Uniform means with spatial coordinate x y z there is no variation. So uniform का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, just for the sake of explanation. Now chain length is given, whole chain length is given L, mass per unit length is given lambda. Okay, so four options are there, and let me read the options quickly and then we'll do one by one. ठीक है, the velocity v of the chain as a function of x, that means x is the fallen length of the chain. Velocity निकालना है, general velocity निकालना है in terms of x. Okay, what else? Acceleration of the falling chain as a function of x. Velocity निकालना है, acceleration निकालना है, general expression निकालना है. Now tell me one thing, acceleration निकालना है, right? So tell me one thing, will this chain accelerate? Yes, of course. जैसे जैसे more chain has been fallen, ज़्यादा से ज़्यादा chain is down, its velocity will keep increasing. That means it is going to be accelerating. Okay, velocity is not going to be constant. So x is going to be increasing, and जैसे जैसे x increase किया velocity increase करेगा, and velocity increase किया तो there would be acceleration, right? Now energy q lost from the system as the last link leaves the platform is. Okay, वो सिस्टम एंड सराउंडिंग थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ लगाएंगे. ठीक है, एंड विल डू दैट लेटर ऑन. नाउ टेंशन एट द मिडिल पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग चेन इज. ओके, जनरल लेंथ हम कंसीडर करेंगे x, उसके मिडिल पॉइंट पे कितना टेंशन एक्ट करेगा, दैट वी आर गोइंग टू डू. सो बेसिकली आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस प्रॉब्लम फ्रॉम द टेंशन ओनली. सो टेल मी वन थिंग, इसके मिड पॉइंट पे, ये प्रॉब्लम स्ट्रिंग वाले में भी किया होगा, या यू माइट हैव फेस्ड. देखो, मान लो x फॉलन हुआ, dx, just forget about dx for now. So dx is a very small length, right? You can neglect it. So x फॉल किया, ठीक है, तो उसके मिड पॉइंट पे कितना वेट एक्ट होगा? टेल मी. उतना ही वेट एक्ट होगा जितना इस मिड पॉइंट के नीचे वाले चेन का वेट होगा. ऊपर वाले वेट से कोई टेंशन आ रहा है इस मिड पॉइंट पे? नो, ओनली द वेट ऑफ द chain which is below this center point or mid point, let's call it m. m के नीचे जितना वेट होगा वही उस पे टेंशन का कॉज होगा, other than that there is no weight. Okay, now okay, let's do this. So हम वही पुली मास स्ट्रिंग वाला सिस्टम वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे इसमें. ठीक है, वेट कितना होगा? द वेट ऑफ द चेन बिलो m पॉइंट.
बताओ, लैम्डा इंटू एक्स बाई टू, लैम्डा इंटू एक्स बाई टू, दिस इज m इंटू g. mg is acting downward, minus t center is equal to ma, right? So lambda x by 2 acceleration. ठीक है. Now okay, lambda x, why there only 2 here, lambda x by 2 into acceleration. This chain, भले ही वेट जो है नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, दिस चेन कहाँ गया, होल चेन वुड बी एक्सीलरेटिंग, x नीचे आया राइट, तो अब उसमें नहीं x by 2 लगाने लगना, ठीक है. द होल चेन इज एक्सीलरेटिंग, जितना फॉल किया है पूरा, तो वहां पे x by 2 नहीं लगेगा, ठीक है. यू आर नॉट गोइंग टू कंसीडर, यू आर गोइंग टू कंसीडर द होल मास. सो पूरा x अगर फॉल किया है तो पूरा मास एक्सीलरेट कर रहा है, राइट. लैम्डा x इनटू a. नाउ व्हाट यू डोंट नो एंड व्हाट यू डू नो, you have to find out TC and everything else you know except acceleration. Now let's go on to the acceleration. How can you do that, calculate acceleration, ठीक है. तो न्यूटन्स सेकेंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, राइट. सो यहाँ पे फोर्स अगर मान लो x और dx फॉल किया तो चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, पहले लेट्स से x पे अगर x फॉल किया है तो मोमेंटम कितना हुआ, p1 इज इक्वल टू लैम्डा x, दिस इज m इनटू वेलोसिटी, राइट. अगर x प्लस dx फॉल होने में, x फॉल हो चुका है, dx लेंथ और फॉल होने में कितना मोमेंटम आएगा, मोमेंटम कितना चेंज होगा, अगर उसका हम रेट ऑफ चेंज निकालें तो दैट वुड बी फोर्स, राइट. P2 कितना हो जाएगा, लैम्डा x प्लस dx, राइट. अब एक बात बताओ, यहाँ पे x एंड v आर द क्वांटिटीज विच आर वेरिंग, यू नो, टुगेदर. सो x इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 टुगेदर, मतलब ये नहीं कि लीनियर वेरिएशन. व्हाट आई मीन इज कि अगर x इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 तो वेलोसिटी भी 0. तो अगर x से x प्लस dx हुआ तो वेलोसिटी भी कितना हो जाएगा, v प्लस dv, राइट. इसको हमें निकालना क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन फॉलिंग द चेन फ्रॉम x टू x प्लस dx. वही हमारा रेट ऑफ, सॉरी वही हमारा चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा, एंड देन विल कैलकुलेट रेट ऑफ चेंज, दैट वुड बी फोर्स, ठीक है. तो ये कितना हो जाएगा बताओ, इसको कैलकुलेट कर लो, लैम्डा xv प्लस x dv प्लस v dx प्लस dx dv. देखो dx dv both are small quantity and if you multiply two small quantity, let's say 0.01 into 0.01, कितना आया, 0.0001, right. that becomes even smaller quantity. तो इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पे आया कितना, लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो, लैम्डा xv प्लस लैम्डा टाइम्स, देखो x dv प्लस v dx, आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा, उसमें x dx प्लस y dx को हम लिख सकते हैं dxy, ठीक है. वही फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, राइट. तो यहाँ पे लैम्डा इनटू dxv लिख सकते हैं, राइट. p2 आ गया, चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं, dp कितना आ जाएगा, p2 minus p1. when you will do p2 minus p1, this will goes away, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या आपका, लैम्डा dxv, राइट, ठीक है. नाउ this force, this ma is going to be balanced by what, not balanced, rather the equation balance हो जाएगा तो फिर net force, right, 0. I should not say balance, okay. So this equation I will need later on. I'm going to erase this one and this one as well.
तो दिस लैम्डा डी एक्स बी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एक्स एम इंटू जी, राइट। ठीक है, वही वेट ही तो, वेट इज द रीजन फॉर एक्सेलरेशन, राइट। वेट किसका? चेन के वेट, चेन के खुद का वेट, weight of the chain itself is the cause of the acceleration or cause of this force, right? तो यहाँ करते हैं, okay, so yes, how can you difference integrate it? Okay, so dxv, so we need xv, consider xv some new parameter, right? xv को हम कुछ मान लेते हैं, xv को मान लेते हैं let's say y, ठीक है, लैम्डा डी वाई इज इक्वल टू लैम्डा एक्स जी। लेट्स मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई वाई, लैम्डा वाई, ओके लैम्डा इज कैंसिल्ड आउट, राइट, वाई एम आई राइटिंग मल्टीपल टाइम्स, सो दिस लैम्डा गोज अवे, राइट, सो वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स जी इंटू वाई, वाई को यहाँ क्या लिख दो, x into velocity and it would be gx square into velocity को क्या लिख दो, okay, I have made a mistake and what is that? So this is just a change in momentum, right, and rate of change of momentum is the thing, ठीक है, यहाँ पे upon dt into dt कर दो, ठीक है, dt उधर भेज दो और into dt, ऑलराइट। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे, और वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो, dx by dt, तो मैं यहीं पे चेंज कर दे रहा हूँ, वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो, dx by dt, dt हो जाए क्या आ गया, gx स्क्वायर dx, इंटीग्रेशन की लिमिट ले लो, ये 0 से y कर दो और इसको कहाँ से, 0 से x, ऑलराइट। सो दिस इज ऑल्सो नॉट इम्पोर्टेंट नाउ, ये कितना आ जाएगा वाई स्क्वायर बाई टू, वाई स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू, ये आ जाएगा जी एक्स क्यूब बाई थ्री, राइट। वाई की वैल्यू रख देते हैं हम, कितना आ जाएगा, वाई की जगह एक्स भी रख देंगे, राइट, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, आई होप यू कैन सी हियर, एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन टू इज इक्वल टू जी एक्स क्यूब अपॉन थ्री, ऑलराइट। x square goes away, here you are left with only x, and velocity you got, my friend, velocity is equal to 2gx by 3 to the power 1 by 2, alright, I hope you understand. Now you have got the velocity, so first option is correct by the way, but you are asked आपको क्या निकालना है, incorrect option, तो first आपका चला गया। एक्सेलरेशन चेक करते हैं कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन, दिस इक्वेशन वी स्टिल नीड, सो आई एम गोइंग टू इरेज दिस पार्ट, दिस गोज अवे, ओके फाइन। वेलोसिटी, वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो, ओके, एक्सेलरेशन निकालने के लिए बेसिकली यू हैव टू इंटीग्रेट, सॉरी डिफरेंशिएट dv अपॉन dt, dv अपॉन dt क्या हो जाएगा, देखो 2g by 3 to the power half is constant, अंदर क्या बचा रूट x का, रूट x का किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट x इंटू x का फिर से करेंगे ना, ये नेस्टेड फंक्शन टाइप का है, dx अपॉन dt, ठीक है, और dx अपॉन dt क्या है, वेलोसिटी, तो इट जस्ट एक्सप्रेशन मैनिपुलेशन 1/2 1/2 रूट x इंटू dx by dt, वेलोसिटी, वेलोसिटी की वैल्यू रख दो 2gx by 3 to the power half, root x and root x cancels out, and this root 2 on top makes it root 2, and this cancelled out with that, 3 square becomes 3 and g square becomes g by 3. So as you can see, acceleration is constant, right? Acceleration is not dependent on length x, all right? So
acceleration of the falling chain is g by 3, it is not a function of x. ऑलराइट, सो यहाँ तक समझ में आया सबको, राइट? चलो नेक्स्ट, अब ये वाला एक्सप्रेशन ध्यान में आ रहा है ना, यूजफुल कैसे है? लेट मी राइट दिस हियर, ओके, यहाँ पे वेलोसिटी आ गया आपका, एक्सीलरेशन आ गया g by 3, टेंशन एट द सेंटर निकालते हैं, लैम्डा xg by 2 minus tc is equal to lambda xg by 3, तो tc कितना आ जाएगा? 1 by 2 minus 1 by 3 1 by 6 होता है, lambda xg by 6. By the way, this is the D option and this is the incorrect option because it is given lambda xg by 3 it is given. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? It is the incorrect option. But एक option और है, that we have to check. और जहाँ पे we are being tested for thermodynamics law, right? तो यहाँ पे टेंशन कितना आ गया सेंटर पे फॉर अ जनरल लेंथ x, लैम्डा xg by 6, ठीक है? नाउ थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ इज Q is equal to डेल्टा U प्लस वर्क डन, राइट? ठीक है, अब देखो डेल्टा U क्या होगा, पहले बताओ सिस्टम क्या होगा? सिस्टम इज द चेन, राइट? आप एक चेन लो ऐसे, ओके, दिस इज योर सिस्टम, ठीक है? दिस इज द लेंथ ऑफ द चेन एंड दिस इज योर सिस्टम, ठीक है? सिस्टम एंड रेस्ट इज सराउंडिंग. सिस्टम और सराउंडिंग समझना बहुत जरूरी है, राइट? Otherwise you won't be able to do. System and rest is surrounding, and you have to find out here what is the heat loss from the system, okay? That's what you have to find. And okay, heat loss from the system. Now what would be the delta U? Delta U is the internal energy, right? Thermodynamics हमने पढ़ा है, delta U is the internal energy, right? तो internal energy होगा, अभी हाउ कैन यू टेल कि सिस्टम का इंटरनल एनर्जी क्या है? ये पूरी चेन, ऑल द चेन्स आर हैज बीन पुट ऑन अ सॉरी सपोर्ट और अ टेबल वेयर देयर इज अ होल, ठीक है? तो दैट इट इज गोइंग टू बी एट सर्टेन हाइट, राइट? तो सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है ना, इट इज ओके, व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी डज इट हैव? केवल पोटेंशियल एनर्जी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, right? And that potential energy is the internal energy of the system. चेन का इंटरनल एनर्जी मत बोलना, बिकॉज चेन के फिर मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स में जाओगे, मटेरियल किस मटेरियल का बना है, लेट्स से आयरन, गैसेस, व्हाटएवर, तो दैट इंटरनल एनर्जी इज इंटायरली डिफरेंट. बट सिस्टम का यहाँ पे इंटरनल एनर्जी वुड बी द पोटेंशियल एनर्जी, द ओनली एनर्जी इट हैज, और वही एनर्जी इज कॉजिंग एवरीथिंग टू हैपन जो आपने देखा है अभी तक. Velocity, it is gaining velocity, it is having acceleration, it is going to have tension, it is going to have kinetic energy later on, that potential energy being converted into kinetic energy, right? तो हम इसका potential energy calculate कर सकते हैं क्या टेबल पे? No, ठीक है? We do not have any means. तो हम उल्टा मानते हैं, हम मानते हैं कि टेबल पे potential energy 0 है and let's calculate further. अगर टेबल पे 0 है तो it's like you reverse everything. ग्राउंड पे, अर्थ पे 0 है पोटेंशियल, सॉरी अर्थ पे नहीं, एट अ सर्टेन हाइट पोटेंशियल एनर्जी इज 0 एंड ऑन अर्थ इट इज हैविंग सम पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे मान रहे हैं. तो हम एक माइनस साइन के साथ इशारा करेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा बताओ? 0. कहाँ पे? एट टेबल या सपोर्ट जो भी है, ठीक है? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, इसी पोटेंशियल एनर्जी जो होगी ना, उसको हम मान रहे हैं इंटरनल एनर्जी, U इनिशियल एंड U फाइनल. कितना आ जाएगा फाइनल बताओ? mgh, m कितना है? लैम्डा इंटू x, ठीक है? g, mg, और लेट्स से चेंज इन लेंथ कितना और बढ़ा है, हम जनरल इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं ना. mgx है, फाइनल में x फॉल किया
mg into dx, ठीक है, इट्स काइंड ऑफ लाइक वर्क डन, ठीक है, mg नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ, दिस लैम्डा xg into dx, ठीक है, दैट वर्क डन इज गोइंग टू बी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, राइट, बट पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस होगा एक्चुअल में, ठीक है, तो हमने मान लिया ना ऊपर जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी ऊपर ही, राइट, दैट पोटेंशियल एनर्जी इज ऑन द टेबल, बट व्हेन इट फॉल्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज रिड्यूसिंग, दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू टेक अ माइनस साइन हियर, ओके, और इसको इंटीग्रेट कर दो कहां से कहां तक, थ्रू आउट इट्स लेंथ, आपको जो हीट लॉस पूछा है वो थ्रू आउट द लेंथ पूछा है, तो ये हो गया u फाइनल कितना आ गया बताओ, लैम्डा माइनस लैम्डा जी एक्स स्क्वायर बाई टू एल स्क्वायर बाई टू, ठीक है भाई, अब बताओ व्हाट इज द वर्क डन, so chain is falling, chain is going to do some work on it, so work not on it, chain is going to so there is going to be work done by the chain, ठीक है, सिस्टम पे work done by the system पूरा is going to do work, and what is that work, okay, delta u निकाल लेते हैं ना quickly, delta u is equal to u final minus u initial, and how much is this, बताओ, माइनस लैम्डा जी एल स्क्वायर बाई टू माइनस जीरो माइनस लैम्डा जी एल स्क्वायर बाई टू, ठीक है, दिस माइनस साइन शोज दैट इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज डिक्रीजिंग, ठीक है, डेल्टा यू इट्स अ डिफरेंस नॉट अ मैग्नीट्यूड, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, ठीक है, अब देखो W क्या होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ, व्हाट इज द वर्क डन बाय अ ऑब्जेक्ट या उसमें उस केस में जैसे भी होता है, तो दैट वर्क डन इज गोइंग टू बी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एंड दैट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज जीरो बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, तो फाइनल माइनस इनिशियल, राइट, इनिशियल जीरो, फाइनल कितना हो जाएगा, हाफ m इज लैम्डा इनटू l, टोटल लेंथ के लिए निकाल रहे हैं, इनटू v स्क्वायर, वेलोसिटी इज हाउ मच, फुल लेंथ के लिए इफ यू कैलकुलेट दिस 2gx इंस्टेड ऑफ x, याद करो, गो बैक टू दैट स्लाइड जब मैं बता रहा था x, तो हमने इसको इंटीग्रेट, ऐसे मत सोचना कि ये वेरिएबल है तो मैंने x इक्वल टू l सीधा क्यों रख दिया, ठीक है, तो जब व्हेन यू वर इंटीग्रेटिंग वहां पे x की वैल्यू जो है वो फाइनल जीरो टू x हमने इंटीग्रेट किया था, अभी हमें क्या रखना है, 0 टू l, तो सेम आ जाएगा 2gl/3 हाफ लैम्डा, सॉरी यहाँ पे इंटू 2gl/3 माइनस 0, 2 कैंसिल्स आउट, क्या बचा, लैम्डा जी एल स्क्वायर बाई 3, यहाँ रख दो इस वाले इक्वेशन में, तो q की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ दिख रहा है आपको, आई होप, लैम्डा इज इक्वल टू q इज इक्वल टू माइनस लैम्डा जी एल स्क्वायर बाई 2 प्लस लैम्डा जी एल स्क्वायर बाई 3, ठीक है, यहाँ से q की वैल्यू आ जाएगी माइनस लैम्डा जी एल स्क्वायर बाई 6, दिस माइनस इज द साइन शोइंग यू दैट हीट इज बीइंग लॉस्ट फ्रॉम द सिस्टम, ठीक है, हीट अगर गेन करता सिस्टम में तो उसे प्लस में डिनोट करते हैं, लॉस व्हेन इट इज लॉस इट इज डिनोटेड बाय माइनस साइन, एंड इट इज करेक्ट, so loss from the system is given lambda gl square by 6, okay, so thank you so much for watching the video, do subscribe to the channel and watch the complete video, okay, so if you are asking the question then you watch the complete video, and also through my videos you understand multiple concepts, not just one, so never hope that okay I'll get to learn only single concept, no, okay, so thank you so much for watching the video, do subscribe to the channel, thank you. It's okay, wait.